So, yesterday we already covered about the NumPy part, and NumPy was we have revised NumPy yesterday fully, completely. Now today we are going to start with Pandas. Okay, so Pandas is basically a package which deals with the different types of labeled data. So when I say labeled data in the sense when there are few fields which has there are multiple fields and each field has some unique name is there and they have the unique identity, and based on those identity they are being separated on the table. So basically pandas works on the tables. So, since we are into the data analysis, and in data analysis, tables are the most important part, and we'll be starting working on the table with this package. So there is one dimension labeled arrays are there, then two dimension, three dimension arrays are available. So let's start with small implementations of the pandas thing. So for using pandas, basically we use pandas package, and here I am taking PD as the alias name for the pandas package. Okay, so what is alias name and what is package? We have already discussed. Now, first of all, I am taking two small list I am taking. Okay, and these small lists I am converting into NumPy array. Okay, so I have simply converted this capitals into a NumPy array. Okay, now what you can we have seen this in last class also, that how a normal list can be converted into an NumPy array. Okay, so two list, one is country, one is capital, and third list I am taking as dictionary. Okay, and now I'll convert one by one in all of them into the pandas series. Okay, so to convert into the pandas series, we'll use pd dot and series as capital. And then inside the parameter, we'll give data, and data is equal to capitals. So you can give the direct data also, and you can give the list name also, like here we have done. We have created list earlier, and here we are supplying that as a parameter. Okay, so now when you will print this, you can see here I am printing this SR1. So it is now printing like this. Okay, so here it is at zero. This is zero index. This is one index. This is two index. Okay, and each index it is showing the series like this. And if I am trying to print SR of one, so SR of one is this Paris. So this it is representing Paris over here. Okay, so this is the simple example. We have converted a normal list into a pandas series. Okay, now now I have another thing like we have countries, and I want to use these countries as indexes, right? So the default indexing is 0, 1, 2, but I want the additional indexing as countries. So with the data capitals, data is equal to capitals, I am supplying an additional argument, that is index is equal to countries, right? So now when I'll print, so I'm printing this series X, and it is printing India, New Delhi, France, Paris, and England, London. And when I am trying to take the same thing with the index, so this index, the index that we have given, that is also working, and the default index it will also work with the same. Okay, so like this, I have not executed this. Now this will work. Okay, so if you will check the type of it, so it will show you the type of pandas core series. So this is the package. Inside that series function is there. This is that type. Okay. So this is how you can see, create the series from list to pandas series. In the same way, if you have the dictionary, so in dictionary you don't need to provide anything. Basically, since dictionary itself works in the form of index and value pair, key and value pairs. So the key will be considered as the index,
and the value will be considered as the actual values of those indexes. Okay, so here both this A, B, C, D, this will also work, and the default indexing will also work as a indexing. Okay, so this is how we can create the series from various data types into the pandas. Okay, if you want to create, you can create the direct series as well. So to create the direct series, basically, what you can do is to create the direct series. Just a minute. Yeah. So to create the direct series, what you can do here I am. First of all, import pandas as PD, and then PD series I am writing, and PD dot series. Here you can write it like suppose 56, 78, 32, 11 like this, and then you can print. So it may not give the exact result, but uh, let's see what it prints. So you can see here it is giving you the series 0, 1, 2, 3, right? So like you can supply the numbers or values directly. That will also be considered as the series. But suppose if you are supplying more than one argument over here. So for example, if I am taking PD, let's say I'm taking two lists over here. So one list is this, and another one list I'm taking as 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. I'm taking like this, and when now I am trying to print this, you can see here I did not give the words like data before this or index before this, like we did here. यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू कैपिटल दिया था एंड इंडेक्स इज इक्वल टू कंट्रीज दिया था। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बट स्टिल व्हाट दिस इज डूइंग इज कि जो पहला आपका आर्ग्यूमेंट है, इसको इसने एज अ इंडेक्स, इसको एज अ वैल्यू कंसीडर किया और इसको एज अ इंडेक्स कंसीडर कर लिया। सो अब यहाँ पे अगर हम पीडी सीरीज ऑफ सपोज 22 प्रिंट करना चाहें, सो यहाँ पे यू कैन सी एट 22 वैल्यू इज 78। ओके, दिस इज व्हाट इट इज प्रिंटिंग। ठीक है। Now, the important part over here is suppose I am giving this PD series is equal to PD dot series, and here I am giving suppose I am giving list of suppose 23, 65, 89, and 12. I am giving. Okay. In the another part, I am giving suppose 0, 1, 2. So now I am trying to create the series. You can see it is giving me error. अब ये एरर यहाँ पे क्यों दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है लेंथ ऑफ वैल्यूज इज 4 डज नॉट मैच विद द लेंथ ऑफ इंडेक्स 3। यहाँ पे मैंने 4 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, यहाँ पे मैंने 3 ही आर्ग्यूमेंट दिए हैं, और ये पहला आर्ग्यूमेंट जो पहली लिस्ट है वो एज अ वैल्यू कंसीडर हो रही है, और जो दूसरा जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ ये एज अ इंडेक्स कंसीडर हो रही है। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज के लिए इसे इंडेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज गिविंग यू द एरर। ओके, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर of values should be equal to number of indexes. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, in the same way, let's suppose I am giving PD dot PD series is equal to PD dot series, and I am taking this suppose 54 and 99. Oh, sorry, 54, 99, and 102. And in another part, I am taking like 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ओके, सो अब हमने इंडेक्स ज़्यादा दिए हैं, और जो हम वैल्यूज हैं वो कम हैं, और अब हम यहाँ पे पीडी सीरीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस अगेन इट इज गिविंग द सेम एरर, लेंथ ऑफ वैल्यू 3
and does not match with the length of index 4, right? So चाहे आपने इंडेक्स कम दिए हो या आपने वैल्यूज कम दिए हो, जो भी किया हो, ये दोनों ही केसेस में ये वर्क नहीं करेगा. नंबर ऑफ इंडेक्सेस एंड नंबर ऑफ वैल्यूज शुड ऑलवेज बी मैचिंग. या तो आप इंडेक्स एक भी ना दें, राइट, तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग को कंसीडर कर लेगा. लेकिन अगर आपने इंडेक्स दिए हैं तो पूरे इंडेक्स देने हैं. जितने जितने रिक्वायर्ड हैं उतने देने हैं. कम नहीं देने हैं, ज्यादा भी नहीं देने हैं. ठीक है. इज इट ओके क्लियर? सर, क्लियर। ओके. ओके. अब आपने सीरीज क्रिएट कर ली. अब सीरीज क्रिएट करने के बाद आपको उसमें इंडेक्सिंग कैसे करें, तो इंडेक्सिंग इसमें वैसे ही होगी जैसे आप अभी तक करते आए हो. बिल्कुल उसी तरह से इंडेक्सिंग काम करेगी. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो डिक्शनरी हमने क्रिएट की थी उसको हमने सीरीज में कन्वर्ट किया, और सीरीज का हमने शेप चेक किया. तो शेप चेक करने के लिए सिंपली सीरीज नेम डॉट शेप. ओके. सो दिखा देगा कि इसमें 8 एलिमेंट हैं. अब यहाँ पे जो इंडेक्स वाला पार्ट है उसको एज अ एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने दिखा दिया ये 8, इसमें 8 वैल्यूज हैं. पूरी सीरीज यहाँ पे इसने प्रिंट कर दी. ना माई सीरीज ऑफ 5, अगर हमने देखने की कोशिश की तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे ये आ रहा है. तो यहाँ पे ये इसने 60 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करी है. ठीक है. इन द सेम वे हमें शुरुआत से और 3 - 1 तक सारी चीजें प्रिंट करनी है, इंडेक्स तक प्रिंट करनी. तो यहाँ पे 0 1 2 यहाँ तक प्रिंट होगा, और उसके आगे का प्रिंट नहीं होगा. राइट. सो इसने यहाँ तक प्रिंट कर दिया. ओके. देन 3 to 7 हमें प्रिंट करना है. 3 से स्टार्ट करना है और 7 - 1 तक जाना है. राइट. सो सर ये हम्म. सर ये डेटा टाइप इंटीजर 64। हाँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू डाली है ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि इस जो जो डेटा है इसका डेटा टाइप इंटीजर है. तो यहाँ पे जी सर। आपको इसके लिए इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है. अभी आप पैंडास में आ गए हो, तो पैंडास में आप टेबल्स पे बेसिकली काम कर रहे हो. ये एक तरीके की सिंगल कॉलम टेबल है. ठीक है. अभी ओके सर। अभी स्टैंड अलोन डेटा नहीं है, एक सिंगल कॉलम की टेबल है. अब मल्टीपल कॉलम की टेबल अभी आएगी आगे. ये अभी एक सिंगल कॉलम की टेबल की तरह है. तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है. ठीक है. ओके सर। देन यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया. एंड देन माई सीरीज, इसमें ई इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, मल्टीपल इंडेक्सेस पे, 0 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे, 7 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो देखनी है. तो रैंडम इंडेक्सेस पे भी आप यहाँ से वैल्यू उठा के देख सकते हैं. अगर आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना चाहें तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करा सकते हैं. माई सीरीज प्लस माई सीरीज, मैंने सीरीज को आपस में ही ऐड करवा दिया. तो करस्पॉन्डिंग नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे. करस ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग नंबर्स ही ऐड होंगे, कोई भी किसी से भी ऐड नहीं होगा. राइट. हमने बाई 2 कर दिया तो सारे एलिमेंट बाई 2 में आ गए. राइट. सो दिस इज बेसिक. अभी यहाँ पे आप देखो, जब हमने माई सीरीज को बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया सब में. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की वजह से यहाँ पे आ गया फ्लोट. ठीक है. ऊपर जब यहाँ पे इंटीजर था तो सब जगह इंटीजर आ रहा था, लेकिन जैसे डेटा टाइप चेंज हुआ तो यहाँ पे भी डेटा टाइप दूसरा दिखाने लगा. ठीक है. तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी सीरीज को क्रिएट करके वैल्यूज लेके आ सकते हैं. क्लियर? क्लियर। ओके. अब इसमें दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम. तो सीरीज जो होती है, सीरीज एक सिंगल कॉलम पे वर्क करती है. सीरीज डज नॉट वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम. सो व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंसीडर द डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम इज बेसिकली अ 2D डेटा स्ट्रक्चर. राइट. इसमें आपके पास रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे. राइट. सो विल क्रिएट some small data frames initially, and then we'll start working with the table eventually. So तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सिंपली pd डॉट डेटा फ्रेम हमें यूज करना पड़ेगा. डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल. राइट. सो यहाँ पे हमने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम, और आगे अभी हमने कुछ भी नहीं दिया. तो यहाँ पे इसका जो ये डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा. राइट.
और उसको हमने प्रिंट किया डीएफ, एंड इसका टाइप हमने चेक किया। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि अब ये pandas कोर फ्रेम और डेटा फ्रेम आ रहा है ये। ठीक है, अर्लियर इससे पहले जब चेक किया था तो यहाँ पे सीरीज आ रही थी, यहाँ पे हमने देखा था तो यहाँ पे पैंडा कोर सीरीज आ रही थी, सीरीज डॉट सीरीज। यहाँ पे फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम आ रहा है। ठीक है, पैंडास कोर फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। ओके, अब हम एक लिस्ट से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, इससे हमें डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पे गए सीधे fruits डॉट डी एफ जीरो एंड pd डॉट डेटा फ्रेम। सो pd डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट हमने दिया है, तो ये पहले भी दिया था। इसके अंदर हमने यहाँ पे इस लिस्ट को सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रूट्स डी एफ जीरो करके हमारा एक डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, तो जैसे ही ये डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये अभी ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ये वाला पार्ट मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी ऊपर वाला पार्ट ही रखते हैं। राइट, सो अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिंट के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमें इस तरह से प्रिंट कराएंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम पहले जो जैसे अभी तक हम सारी चीजें प्रिंट कराते आ रहे हैं वैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे ये एप्पल बनाना कोकोनट डेट्स इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये आ रहे हैं एक नॉर्मल फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे अभी पहले हमारी सीरीज में आ रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ऊपर ऊपर देखो कि यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो भी जीरो आ रहा है, और यहाँ पे 0 1 2 3 हमारे इंडेक्सेस आ रहे हैं। राइट, अभी अगर हम यहाँ पे ये स्प्रिंट को यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम अब प्रिंट कराते हैं, तो अब अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉलम्स की जगह पे फ्रूट के नाम दे रहे हैं। हम एक फ्रूट फ्रूट हम नाम दे रहे हैं कॉलम्स पे। ठीक है, अब हम उसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अभी यहाँ पे देखो पहले जहाँ पे ये यहाँ पे जीरो आ रहा था, इस जीरो की जगह पे अब यहाँ पे फ्रूट हमारा नाम आ रहा है। और चूंकि अब हमने यहाँ पे प्रिंट को यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे अब ये कैसे आ रहा है, ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक टेबुलर फॉर्मेट में हमें थोड़ा सा हल्की सी ग्राफिक्स के साथ में दिखाई दे रहा है, जिससे हमें हमारी टेबल थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से हम अपनी लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने चार अलग अलग लिस्ट दे दी। तो इसमें ये पहले पेशेंट का डेटा है, फिर दूसरे पेशेंट का डेटा है, फिर तीसरे पेशेंट का डेटा है, फिर चौथे पेशेंट का डेटा है। ठीक है, ये हमने एक 2 डायमेंशन लिस्ट बनाई है यहाँ पे। और एक 2 डायमेंशन लिस्ट बनाने के बाद हमने इसी लिस्ट को यहाँ पे डेटा फ्रेम में सप्लाई कर दिया। तो डेटा फ्रेम में सप्लाई करने पे क्या हुआ, अभी ये ये वाला हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे ये कॉलम्स क्रिएट कर दिए। तो कॉलम्स हमारे पास कैसे आ गए, तो जो एक हमारी पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये एज अ पूरी रो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी लिस्ट हमारी दूसरी रो में एग्जिस्ट कर रही है, तीसरी लिस्ट तीसरी रो में, चौथी लिस्ट चौथी रो में। इस तरह से हमारे पास डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। आप अगर कॉलम के नाम देखोगे तो अभी कॉलम के नाम 0 1 2 ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन कॉलम्स के कुछ नाम हो, तो कॉलम्स पे हमने यहाँ पे कुछ लेबल्स दे दिए। तो कॉलम्स इज इक्वल टू दिस इज नेम, दिस इज एज एंड दिस इज ब्लड ग्रुप। राइट, जैसे ही हमने ये दिया तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, एज और ब्लड ग्रुप करके तीन अलग अलग कॉलम हमें यहाँ पे शो होने लगे। इज इट क्लियर? क्लियर। ठीक है, यस। ओके, ग्रेट। अभी अ, अभी यहाँ पे हमने एक एक अलग अलग लिस्ट दी थी, लेकिन अगर हम इसको डिक्शनरी के थ्रू दे रहे हैं तो डिक्शनरी में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नेम में सारे नाम एक साथ दे दिए। फिर एज में हमने दूसरी लिस्ट बना के दे दी, और ब्लड ग्रुप में सारे ब्लड ग्रुप दे दिए। तो करस्पॉन्डिंगली ये अपने रिकॉर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेगा। तो रिक्की 60 ओ पॉजिटिव, ये पहला रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर मॉर्टी, देन 10 ओ प्लस, ये दूसरा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से
यहाँ पे ये और रिकॉर्ड बन के, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, एज और ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिकली इसके कॉलम असाइन होंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डिक्शनरी से कैसे आप ऑटोमेटिकली की नेम भी असाइन कर सकते हो विदाउट गिविंग द कॉलम नेम्स। इतना क्लियर है सबको? ओके। Yes, sir. ओके। Now we'll start giving some data from our system. तो ये तो अभी तक हम डेटा क्रिएट कर रहे थे, हमने कुछ रैंडम डेटा क्रिएट कर लिया, और लेकिन मोस्टली जब आप काम करोगे तो आपको डेटा कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो सीएसवी आपको पता है, सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डेटा फाइल होती है। ठीक है। इसके अलावा एक्सेल फाइल होती है, जेएसएफ फाइल होती है, वेब्स की फाइल होती है, अलग अलग तरीके की फाइल्स होती हैं, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मेरे सिस्टम में ये फाइल स्टोर्ड है, इसको मैं लेके आऊंगा। इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई, तो मैं लोकेशन एक बार चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं। सो ये लोकेशन मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ उसकी। सो दिस इज पाइथन एंड इनसाइड पाइथन देयर इज अ माय वर्क एंड प्रैक्टिस फाइल्स। ये इसकी लोकेशन है। ओके, सो आई चेंज दिस लोकेशन। ओके, सो ये आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कहाँ पे डेटा फाइल स्टोर है। जैसे मेरे सिस्टम में डी ड्राइव में, डीएस टूल में पाइथन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर माई वर्क का फोल्डर है, उसके अंदर प्रैक्टिस फाइल्स है, और इस प्रैक्टिस फाइल्स में यहाँ पे ये वाइन डॉट सी एस वी करके डेटा स्टोर है। ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। अब ये सी एस वी फाइल है। सी एस वी फाइल का मतलब क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स सारे जो कॉलम्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे इसको नॉर्मल फाइल को देखना चाहते हो, आई शेयर द screen. So if you want to see this normal file, so you can see here, this is the file. I am opening this. अभी यहाँ पे आप CSV देख रहे हो, तो आप इसको नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको नोटपैड पे ओपन करते हैं। नोटपैड में ओपन करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, अ, वो सारी वैल्यूज आपकी कॉमा के साथ में सेपरेटेड है। ईयर कॉमा प्राइस कॉमा विंटर रेन कॉमा एजीएसटी कॉमा हार्वेस्ट रेन कॉमा एज एट फ्रांस पॉप। ये आपके सबसे पहले कॉलम नेम्स हुए। इसके बाद इसके अंदर जो वैल्यूज है वो भी सारी कॉमा के साथ में सेपरेटेड है। तो ऐसी फाइल्स को हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है। Okay, sir. आप यहाँ पे इसमें जो डेटा है, इस डेटा में लगभग हमारे पास कितना है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो नंबर है और कॉलम है ये भी चेंज हुआ है। तो अभी मैं लाइन नंबर 6 पे हूँ, तो यहाँ पे NN6 दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ूंगा तो ये आगे ये बढ़ता जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 29। आपका जो डेटा है वो 28 तक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कितनी होंगी? हमारे पास यहाँ पे 27 वैल्यूज होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहली रो है वो हमारा हेडर है, तो वो हमारे डेटा में कंसीडर नहीं हो रहा है। तो 27 रोज हैं, हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आते हैं। तो इंपोर्ट करने पे यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट कराने पे इसको रन कराया, तो अभी आप देख सकते हो कि 27 रोज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स टिल 26, 27 रोज है। सो इट मेक्स सेंस कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी और 26 तक जाएगी। ओके। सो यहाँ पे वो आप डेटा देख सकते हो, डेटा क्या है। तो अभी डेटा फाइल हम इंपोर्ट करके लेके आ गए, और हमने देख भी ली कि डेटा फाइल में हमें कुछ कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। अब इसके एट्रीब्यूट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे किस किस टाइप का डेटा है, कौन कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है। तो कभी कभी ये तो आपके पास छोटी टेबल है तो सामने पूरी दिख रही है, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी टेबल होती है कि जिसको आप शायद देख भी
नहीं सकते हैं, राइट। मतलब उस टेबल में सपोज 40-50 लाख रोज हैं, और सपोज 50-60 कॉलम्स हैं, तो आप एक नज़र में उसको देख नहीं सकते, आपको इधर उधर सिस्टम को मूव कराना होगा, राइट। अपनी स्क्रीन को इधर से उधर मूव कराना होगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका एट्रीब्यूट इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन क्या करता है कि जो भी पैंडा सीरीज है उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन निकाल के हमें देता है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, फिर हर कॉलम का नाम क्या है, उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उस कॉलम में कितने काउंट हैं, कितनी नॉर्मल वैल्यूज हैं और कितनी फ्लोट वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे निकाल के दे देगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आप देख सकते हो कि इसने हमें बता दिया कि टोटल ये एक पैंडा स्कोर डेटा फ्रेम सीरीज है। इसमें 27 एंट्रीज हैं टोटल। इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 26 तक जा रहा है। देन टोटल 7 कॉलम है। सो यहाँ पे यू हैव ईयर, देन प्राइस, देन विंटर रेन, देन एजीएसटी, हार्वेस्ट रेन, एज एंड फ्रांस पॉप। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस टेबल में ऑलरेडी अभी एज ऑफ नाउ दे आर अवेलेबल। ओके, उसमें से अभी यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे 26 वैल्यूज दिखाई दे रही है, बाकी सब में प्रॉपर वैल्यूज दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि प्राइस में एक वैल्यू मिसिंग है कहीं पे। ये कहीं पे भी हो सकता है, तो ये नहीं बताता कि कहाँ पे मिसिंग है, लेकिन एक वैल्यू कहीं पे मिसिंग है। और इनके जो डेटा टाइप है, ये इंटीजर 64 है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे फिर विंटर रेन भी आपकी इंटीजर है, और हार्वेस्ट एजीएसटी आपका फ्लोट में है। तो इस तरह से आप हमारे पास 3 फ्लोट हैं और 4 इंटीजर है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि डेटा टाइप्स में 3 हमारे पास फ्लोट हैं और 4 इंटीजर है। क्लियर? क्लियर है। ग्रेट। तो ये हो गया एक जो नॉर्मल सी हम फाइल फाइल इंपोर्ट करी। इसी तरह से जेसॉन फाइल्स होती है, जेसॉन फाइल को इंपोर्ट करना है आपको। अब ये फाइल, अब हम लोकल सिस्टम से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक ऑनलाइन लोकेशन है, गिटहब की लोकेशन, वहां से हम इसको इंपोर्ट करके लेके आते हैं, राइट। सो गिटहब की लोकेशन से हमने इसको उठाया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कराया। तो अब ये जेसॉन फाइल है, तो यहाँ पे हमने रीड डॉट जेसॉन यूज किया। जेसॉन फाइल जनरली एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट वगैरह की प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। तो हमने उसको वहां से उठाया और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया, तो यहाँ पे जेसन डीएफ बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होंगी। सो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। सो यू कैन सी नाउ हाउ टेबल इज कमिंग ओवर हियर। आपकी टेबल यहाँ पे कैसे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बड़ी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, कोई भी बहुत लंबे लॉजिकल पार्ट नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, वो छोटे छोटे कमांड्स जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप बाय हार्ट होते जाएंगे। आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। ओके, देन कोई एक्सेल की शीट आपको उठानी है, तो यहाँ पे आप रीड अंडरस्कोर एक्सेल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये पूरी शीट है, यहाँ पे इस शीट में ये सुपर मार्केट डॉट एक्सेल एक्सेल एक्स है, और शीट नेम 0। तो शीट नेम 0 का मतलब है कि ये जो भी आपकी जो सबसे पहली शीट है, वो उसको वहां से उठाएगा और पहली शीट को उठा के यहाँ पे हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अभी अभी यहाँ पे आप इसकी इन्फो देखोगे, तो इन्फो में हमें इस तरह से यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनके क्या टाइप है, क्या साइज है, और वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ये फाइल है, या सीएसवी फाइल आपको वेब से उठानी है, तो सीएसवी फाइल आप वेब से भी उठा के देख सकते हो कि क्या आपके पास डेटा है, राइट। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो अगर आपको यहाँ पे देखना है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, सिंपली शेप फंक्शन, राइट। क्योंकि डेटा फ्रेम जो काम करता है वो रोज कॉलम पे ही काम करता है, मोस्टली ये स्टैंड अलोन चीजों पे काम नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे हमने इसका
यहाँ पे शेप चेक किया, फिर यहाँ पे इसका डी टाइप। तो डी टाइप अब अभी जैसे मान लो हम यहाँ पे इन्फो चेक करते तो इन्फो में सारी चीजें एक साथ दिखा देता है। अभी यहाँ पे देखो डी टाइप है या यहाँ पे कॉलम है। तो अगर हमें सिर्फ डेटा टाइप चाहिए इंडिविजुअल कॉलम्स के कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली डी टाइप को यूज कर लोगे। तो डी टाइप हमें दिखा देगा कि कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है। तो डेटा का ऑब्जेक्ट है, इसका क्लोज का फ्लोट है, वॉल्यूम का इंटीजर है, और सिंबल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें दिखा रहा है। इन्फो देखोगे, देखोगे तो सारी इंफॉर्मेशन पूरी दिखा सर देगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कहाँ से क्लियर नहीं थी? अब से आ रही है सर। अभी सही है? हाँ। ओके। सो यहाँ पे आप इन्फो में देखोगे तो इन्फो में आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। आपको इंडिविजुअल वैल्यूज काउंट करनी है कि आपके इसमें कितनी वैल्यूज हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने ये नेम अपना जो पीपल डीएफ क्रिएट किया था उसी में आप देखोगे तो यहाँ पे सब में चार चार वैल्यूज थी। तो यहाँ पे चार नेम है, चार एज है, और चार ब्लड ग्रुप है। राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराई थी, ये वाली वाइन डॉट सी एस वी, तो वाइन डॉट सी एस वी में एक मिसिंग था। अगर आप वाइन डॉट सी एस वी को यहाँ पे यूज करके देखोगे तो यहाँ पे आपको चीजें बेहतर क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इन्फो, यहाँ पे हम इसमें यूज करते हैं, इसमें यहीं पे एक नया नोट बनाते हैं, वाइन। यहाँ पे भी नाम क्या लिया था इसका, वाइन वाले डेटा का, सी एस वी डी एफ, सी एस वी अंडरस्कोर डी एफ, CSV CSV अंडरस्कोर DF डॉट। और यहाँ पे हम इसका चेक करते हैं काउंट। राइट। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग थी, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक कॉलम के लिए यहाँ पे कम वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम के लिए कंपेरेटिवली कम दिखा रहा है, बाकी सबके लिए पूरी पूरी वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक करोगे तो इंडेक्सिंग आपकी जो ट्रिपल डीएफ है 0 से स्टार्ट हुई थी, 4 तक इंडेक्सिंग गई थी। एंड इंडेक्सिंग में स्टेप साइज 1 है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स हैं, कॉलम के नाम हमें देखने हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे हमने कॉलम दे दिया तो यहाँ पे कॉलम के नाम दिखा दिए कि कॉलम के नाम क्या क्या है। ठीक है। पूरा डेटा देखना है तो हमने डेटा का नाम दे दिया, तो डेटा का नाम इस तरह से आ जाएगा, आपका आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है। अगर आप कुछ किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स ऑफ उस कॉलम का नाम दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसकी यूनिक वैल्यू सेट हो जाएगी। जब भी आप इंडेक्स सेट करें तो कोशिश करो, आप अगर नहीं करो तो ये चीज़ एरर नहीं देगी, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि इंडेक्स में मोस्टली कॉमन वैल्यू, मतलब रिपीटेड वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तभी उसको इंडेक्स बनाने का फायदा है, क्योंकि इंडेक्स इज फॉर द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इनसाइड द एरे, or inside the list, or inside the matrix, or inside of any other data type. Right. Either you are using the list or Python or string or NumPy array or anything you are using, index should be unique. तो कोशिश हमेशा आपको यही करनी चाहिए कि आप जिस भी कॉलम को आप एज अ इंडेक्स बना रहे हैं वो इंडेक्सिंग आपकी कॉमन होनी चाहिए, सॉरी कॉमन नहीं होनी चाहिए, और यूनिक होनी चाहिए सारे नंबर्स के लिए। राइट। आगे कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस आएंगे जहाँ पे हम इस इंडेक्सिंग को ग्रुपिंग के लिए भी यूज करेंगे। सो वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि हम इंडेक्सिंग के साथ में ग्रुपिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो जब वहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी तो वहाँ पे हम मल्टीपल इंडेक्सेस के लिए वैल्यूज सेट करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज के लिए इंडेक्सेस सेट करेंगे, और उसके थ्रू हम ग्रुप ऑपरेशंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर। अब हमें कोई भी नया कॉलम ऐड करना है या कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना है या सेलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें कैसे करेंगे, लेट्स एक्सप्लोर दैट। ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अब जो आप
पढ़ोगे वो सारी चीजें आपको रियल टाइम में काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको डेटा भी करने प्रैक्टिस करने को दूंगा, या आप अपना डेटा कोई भी ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो आप उस पर भी स्टार्टिंग कर सकते हो। मैं भी आपको एक डेटा दे दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा people_df ब्लड ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, तो सारे ब्लड ग्रुप यहाँ पे शो कर दिए। आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, स्कोर। ठीक है, तो स्कोर हमने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे पीपल हमने सिंपल डाला। यहाँ पे कोई जैसा कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे हम डिक्शनरी में एक नया कॉलम ऐड करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं सीरीज में, PDDF, एंड यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया। तो जब ये आपका डेटा फ्रेम में बनेगा जाके, तो ये अकॉर्डिंगली वैल्यूज सब में ऐड कर देगा। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर यहाँ पे सपोज अब जैसे people_df है, और यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक नया कॉलम ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने नया कॉलम ऐड करने की कोशिश करी। सपोज people_df, एंड इसके अंदर हमने डाला CHK, एंड इसमें हम वैल्यूज असाइन करते हैं। एंड rather than assigning 4 values together, what I am doing is I am doing just three, giving just 3 values. Okay, and now when I'll try to print people_df, so you can see it is again giving me error, right? अभी हमें एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जो हमने लेंथ डाली है वो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ये जो इसकी इंडेक्सिंग है वो 4 तक जा रही है, तो चौथे के लिए इसको वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे वो उसको ऐड नहीं करेगा। तो सिंपल जैसे पिछली बार हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे भी ये वही कर रहा है जो इसने पहले किया था, कि अगर नंबर ऑफ इंडेक्सिंग या नंबर ऑफ वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, तो वो एरर जनरेट करेगा। ओके, ओके सर। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे people_df_sum, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कॉलम है, एग्जिस्टिंग कॉलम से हम यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया सम, और इस सम में स्कोर और एज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे सम का एक नया कॉलम क्रिएट हो गया आ गया। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कॉलम से कैसे आप नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, वो ये है। ठीक है, तो जब डेटा प्रिपरेशन वगैरह यूज करोगे तो इसमें इन चीज़ों का बहुत यूज होगा। ठीक है, अभी आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, तो कॉलम को जब आप डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम ड्रॉप स्टेटमेंट, ड्रॉप फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप फंक्शन के साथ में आगे आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हैं। तो ये ऑप्शन क्या करते हैं कि अगर आपको जो टेबल रिप्लेस करनी है, जो जो भी कॉमन जो जो भी कॉलम आप यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो, अगर आपको उसको परमानेंटली ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे हमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू डालना पड़ेगा। अगर परमानेंटली ड्रॉप नहीं करना है, तो आपको तो यहाँ पे आप फॉल्स रखोगे। सो एंड दूसरी चीज यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो कॉलम डिलीट करने पे हमें एक्सेस इज इक्वल टू 1 देना जरूरी है। अगर आप रो डिलीट कर रहे हैं, तो आपको एक्सेस इक्वल टू रो 0 देना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आप क्या डिलीट कर रहे हैं, कॉलम डिलीट कर रहे हैं या रो डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो हमने एक्सेस इक्वल टू 1 दे दिया, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे मैं इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ पे सम भी दिखाई दे रहा है। तो इसने टेम्परेरीली यहाँ से उस कॉलम को हटा दिया, बट परमानेंटली डेटा से उस कॉलम को नहीं हटाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ट्रू करोगे, मतलब ये जो चेंजेस है वो परमानेंट सेव होंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आप आगे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इसने दिखा दिया कि आपका जो सम का कॉलम है वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, क्लियर है सर।
बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट जितनी जल्दी ये समझ में आ रही है उतनी जल्दी आप इनको भूलोगे भी। सो डू नॉट अवॉइड टू प्रैक्टिस। ओके। ओके सर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। फिर इसी तरह से हमें हमें कोई एक पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे डेल कीवर्ड के साथ में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो डेल कीवर्ड में हमने यहाँ पे दिया डेल पीपल डीएफ एंड स्कोर। तो इसने ये पर्टिकुलर कॉलम को परमानेंटली यहाँ से हटा देगा। ठीक है। इसी तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को एज इंडेक्स सेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स और उस कॉलम का नाम दे देंगे, तो वो कॉलम एज अ इंडेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है। देन आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप यूज करना चाहते हैं फॉर जैसे यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप को ड्रॉप ड्रॉप कर रहे हैं, और तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया है पीपल डीएफ ड्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप हमारा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक देखो वार्निंग दिखाई दे रही है। वार्निंग क्या है? फ्यूचर वार्निंग। इन फ्यूचर वर्जन ऑफ pandas ऑल आर्ग्यूमेंट्स of data frame dot drop except for the labels will be keyword only। तो पाइथन क्या करता है, अपने जितने भी फंक्शंस हैं उसमें टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो अगर आपने कोई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया, हो सकता है कि ये जो numpy pandas वाली जो फाइल मैंने आपको दी है वो सही वर्क ना करे एट मीन्स। बहुत कम कोड ऐसे होंगे, लेकिन होंगे कुछ कोड ऐसे होंगे जो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होंगे। सो इन दैट केस what you have to do is you have to update the commands syntax according to the new version। ओके। तो आप उसको गूगल जेमिनाई पे या चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हो कि इसका जो नया वर्जन है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपने कमांड को चेंज कर सकते हो। ठीक है। ओके। देन देन आपको यहाँ पे हमें रो वाइज डिलीशन करना है। तो रो वाइज डिलीशन में हमें यहाँ पे समर का डेटा हटाना है। यहाँ पे हमने समर दिया एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो जो यहाँ पे समर का डेटा था वो यहाँ से हट गया। राइट। यहाँ यहाँ तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे समर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने इसको ड्रॉप किया अब समर हमारे लिस्ट का पार्ट नहीं है, सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है। यस सर। ओके। अब डेटा फ्रेम में हम इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं फिर से वही फाइल लेता हूँ अपनी वाइन डॉट सी एस वी, और इस वाइन डॉट सी एस वी में मार्क को हमने मार्केट अंडरस्कोर डीएफ में हमने स्टोर किया और उसको हमने प्रिंट कराया। ओके। हाँ, यहाँ पे भी पाथ हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइल मैंने अपने लोकेशंस को चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पाथ पे एक बार चेंज कर देता हूँ। यस। सो नॉट विल वर्क। ओके। सो यहाँ पे अभी आप देखो कि यहाँ पे इसने हमने इसको इंपोर्ट किया सिंपली पहले की तरह हमने। अब यहाँ पे जो हमने इसका ईयर है, ये ईयर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ईयर हमने इसको एज अ इंडेक्स यहाँ पे सेट किया। राइट। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। तो अब हमें डेटा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स की जगह पे हमें 1952 53 54 इस तरह से 80 तक हमें आ रहा है, 80 तक दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए मार्केट डीएफ आई लॉक। अब ये आई लॉक क्या करता है? आई लॉक रिफर्स टू द इंडेक्स लोकेशन। तो इंडेक्स लोकेशन में अब यहाँ पे ये जो हमें दिख रही है ये रो की लोकेशन है और ये कॉलम की लोकेशन है। राइट। तो 0 रो से मीन्स पहली रो से और चौथी रो तक यहाँ पे हमें पहले ये दिखाएगा, और फिर पहले कॉलम से 5वें कॉलम तक हमें डेटा दिखाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल कॉलम अगर आप देखोगे तो कितने कॉलम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ईयर को हटाने के बाद हमारे पास 6 कॉलम आ रहे हैं। तो छह छह में से 5 कॉलम दिखाएगा और पहली 4 रो ही दिखाएगा। राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने पहली 4 रो यहाँ पे हमें दिखाई और पहले 5 कॉलम दिखाए। ठीक है।
इसी तरह से हमें सारी रोज चाहिए लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले हमने कोलन लगा दिया, तो इससे ये सारी रोज उठा लेगा और उसके पहले 3 कॉलम ही यहाँ पे प्रिंट कराएगा। ठीक है। क्लियर है सर। अब इसी तरह से हमें सारे कॉलम चाहिए लेकिन कुछ पर्टिकुलर रोज चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 to 4 यहाँ पे दे दिया, तो पहले रो से चौथी रो तक यहाँ पे दिखाएगा। और दिस कोलन मीन्स ऑल द कॉलम्स, यहाँ पे भी सिर्फ कोलन लिखा हुआ है, वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ आउटपुट। ठीक है। So this is what is with iLog. So iLog is for the index location. Index location के थ्रू जब भी हमें एक्सेस करना है। ठीक है। इसी तरह से लॉक होता है, तो लॉक से एलओसी से, हाँ एलओसी में हम इंडेक्स और जो कॉलम के नेम है उसके दोनों के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं लॉक में। राइट। सो यहाँ पे हमने 1 2 3 दिया और यहाँ पे प्रिंस दिया, इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 और प्राइस। ओके। देन 4 ऑनवर्ड्स प्राइस टू हार्वेस्ट ट्रेन यहाँ पे हमें दिखाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे सारी रोज दिखानी है और कॉलम AGST ऑनवर्ड सारे दिखाने हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके और इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके बाद आता है मल्टीपल डेटा पे काम करना, कि हम डेटा को मर्ज कैसे कर सकते हैं, कंकैटिनेट कैसे कर सकते हैं और अपेंड कैसे कर सकते हैं। राइट। तो अपेंड करने में और कंकैटिनेट करने में, दोनों में मेन चीज यही है कि जब भी हमें डेटा को या तो अपेंड करना है या कंकैटिनेट करना है, तो नंबर ऑफ रोज, अगर रो वाइज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज मैच करनी चाहिए, और अगर हम कॉलम वाइज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने चाहिए, तभी आप उसको हम या तो कंकैटिनेट कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। मर्जिंग इज समथिंग डिफरेंट। मर्जिंग में क्या होता है कि मर्जिंग में हम एक कॉमन की फाइंड आउट करते हैं और उस कॉमन की के बेस पे हम वैल्यूज को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि मर्जिंग में हम क्या करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोज pandas एज PD। और यहाँ पे हमने 2 डेटा फ्रेम लिए हैं और उनको हमने डिक्शनरी फॉर्म में ही डाला है, जिससे हमें बार बार इंडेक्स ना डिफाइन करना पड़े। तो इसमें आईडी, नेम और सब हमारे पास 3 हेडिंग हैं और उसमें वैल्यूज हैं हमारी। तो ABCDE सब 1 2 3 4 5, इसी तरह से BCDEF सब 3 2 4 5 6 इस तरह से हमारे पास है। तो ये हमारे पास, अब हमने इसको प्रिंट करा के देख लिया, तो ये एक डेटा फ्रेम हमारे पास ये आ गया है और दूसरा डेटा फ्रेम हमारे पास ये आ गया है। ठीक है। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि डेटा फ्रेम हमारा क्या है और कैसे दिखता है। अब हम यहाँ पे सिंपली कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो कंकैटिनेट करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कंकैट फंक्शन दिया, यहाँ पे DF1 DF2 ये हमारे डेटा फ्रेम्स हैं। हम दिया एक्सेस इज इक्वल टू 0, तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें इनको रो वाइज ज्वाइन करना है। रो वाइज ज्वाइन करने का मतलब है कि जैसे ही पहले डेटा फ्रेम की रोज एंड होंगी, उसके बाद जो सेकंड डेटा फ्रेम है उसकी रोज स्टार्ट हो जाएंगी। राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक्सेस इक्वल टू 0 दिया, अगर हम एक्सेस इक्वल टू 1 देंगे तो कॉलम वाइज मर्ज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंकैटिनेट कराया, अभी आप देख सकते हो कि ये पहला जो हमारा डेटा है वो, या ये पहला ये है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। तो इस तरह से हमारे पास 2 डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है। जी सर। एनी डाउट? सर इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 डेटा सेट हमने क्रिएट किए हैं डिक्शनरी के थ्रू, ये समझ में आता है? यस सर। ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे हमने दोनों डेटा सेट्स को यहाँ पे सप्लाई किया और बाद में यहाँ पे दे दिया एक्सेस इक्वल टू 0। तो एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें उनको रो वाइज कंकैटिनेट करना है। तो रो वाइज कंकैटिनेट करने का मतलब है कि जैसे ही एक डेटा सेट की रोज खत्म होंगी,
तो जैसे ही यहाँ पे एक डेटा सेट है, इसकी ये रोज यहाँ से यहाँ तक खत्म होंगी, इसके बाद जो दूसरा डेटा सेट है इसकी रोज यहाँ पे इसके बाद चिपक जाएंगी, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने यहाँ पे रो वाइज मर्ज किया तो ये हमारा पहला डेटा सेट है, और इसी के नीचे हमारे पास दूसरे डेटा सेट की रोज भी यहाँ पे लग गई, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग देखोगे तो इंडेक्सिंग में यहाँ पे ये 0 to 4 आ रहा है, और फिर यहाँ पे भी 0 to 4 आ रहा है, तो हर इंडेक्स पे यहाँ पे दो वैल्यूज अलग अलग है, राइट। सो ये एक हमारा प्रॉब्लम का पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम आगे भी हैंडल करेंगे कि हम इस यहाँ पे जो हमारे इंडेक्सिंग है इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब इसी में जब हमें कॉलम वाइज मर्ज करना होता है तो हमने यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 दे दिया। तो जैसे ही हमने एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया तो यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड हो गए। अभी यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड होने में भी वही दिक्कत है कि आईडी नेम सब और फिर आईडी नेम सब एक ही नाम से दो दो कॉलम बन के आ रहे हैं, राइट। तो अब ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे कॉमन की ढूंढते हैं और डेटा को मर्ज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे इंडेक्सेस और जो हमारे पास कॉलम नेम्स है वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली पीडी डॉट मर्ज हमने यूज किया। गिव मी अ सेकंड, आई विल बी जस्ट बैक इन मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे मर्ज फंक्शन को यूज करेंगे। मर्ज फंक्शन के साथ में अब हम यहाँ पे एक कॉमन की फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आपने ज्वाइनिंग देखी थी एसक्यूएल में, एसक्यूएल की ज्वाइनिंग याद है? एसक्यूएल में ज्वाइन पढ़ा था, वो याद है? जॉइन राइट जॉइन। यस सर। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ज्वाइनिंग की आती है। तो उस की के बेस पे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने ऑन दे दिया। अभी हमने यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग टाइप नहीं दिया। जब कोई भी ज्वाइनिंग टाइप नहीं देते हैं तो बेसिकली ये इनर ज्वाइन को बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेता है। तो इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि जब भी हमें केवल कॉमन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे दो टेबल में देखोगे तो एक एक आपके अगर यहाँ से टेबल को डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे आपके पास अगर हम सपोज यहाँ पे सब पे ज्वाइन कर रहे हैं तो सब में यहाँ पे सब्जेक्ट 3 4 5 एंड सब्जेक्ट 3 4 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आपके पहले टेबल में है और सब्जेक्ट 6 एंड सब्जेक्ट 7 केवल दूसरे टेबल में है। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5 दोनों में कॉमन है। तो हम उसके बेस पे हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अब आप जब अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास आउटपुट में तीन ही आउटपुट आ रहे हैं, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एक्स में है वो इधर आ रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो वाई में है वो राइट साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो केवल कॉमन वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे अब आपको डिफाइन करना है कि आपको कौन सा ज्वाइन लगाना है। तो आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना है या राइट ज्वाइन लगाना है या फुल ज्वाइन लगाना है, आउटर ज्वाइन लगाना है, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हमने लेफ्ट ज्वाइन दिया तो लेफ्ट ज्वाइन में अब क्या होगा, df1 की सारी वैल्यूज आएंगी और df1 के करस्पॉन्डिंग अगर df2 में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो वैल्यूज आएंगी, और जहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं वहाँ पे एन वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 df2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एन आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ रही हैं, ठीक है। यही चीज अगर आप राइट में करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 6 एंड सब्जेक्ट 7 में इसके डीएफ1 में करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर इसी तरह से यहाँ पे आप आउटर लिख दोगे तो आउटर में सारी वैल्यूज आएंगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हो यहाँ पे सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 में अवेलेबल है उनमें आ रही हैं, इन पहले दो में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लास्ट के दो में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे नहीं आ रही हैं, ठीक है। जी सर। एक बार आउटर में क्या होता है फिर से बताना। आउटर में दोनों टेबल की सारी वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 से सब्जेक्ट 5 तक यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे सब्जेक्ट 3 से सब्जेक्ट 7 तक अवेलेबल है।
तो अब सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 7 तक सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 7 तक सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मीन्स दोनों टेबल में जहाँ पे वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के में आपके DF2 में कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे NaN दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7 में DF1 में कुछ भी अवेलेबल नहीं तो यहाँ पे हमें NaN दिखाई दे रहा है। फुल ज्वाइन की जैसे हो गया ये। हाँ, फुल जॉइंट की तरह है। ओके ओके ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यूज हैं वहां पे आएंगी, जहाँ पे वैल्यूज नहीं है वहां पे वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, ठीक है सर। इसी सारा तरह से हम, क्लियर नहीं लग रहा है। हाँ बस फिनिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में हम दूसरी की पे देख लेते हैं। आईडी पे हम अगर ज्वाइन करके देखते हैं तो आईडी पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे इनर ज्वाइन में जो कॉमन कीज हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाकी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये ज्वाइनिंग का एक बेसिक फॉर्मेट है, आप देख सकते हो या कंसीडर कर सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। आई होप ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। नहीं किया है सर नो आपने। सर। ये शेयर नहीं किया? नो सर। सर कल का भी शेयर कर नंबर देना। है, सर जो कल वाला था ना। मैं शेयर कर दूंगा, मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे एंड